नड्डा जी तुम आगे चलो, हम तुम्हारा साथ है। नड्डा जी तुम आगे चलो, हम तुम्हारा साथ है। नड्डा जी जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद। नड्डा जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। আমরা সেই যেভাবে যাকে পাওয়ার জন্য গভীর আগ্রহে এই তপ্ত রোদে সকলে মিলে অপেক্ষা করছিলাম, এখন সেই মহান ব্যক্তিকে আমরা পেয়ে গেছি। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। এখন আমাদের জেলা প্রেসিডেন্ট মাননীয় কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় আমার এই কাটোয়ার খেপি মায়ের যে মূর্তি প্রতিকৃতি সেই দিয়ে সম্বর্ধনা জানাবেন আমাদের এই সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় সভাপতি মহাশয়কে। মাননীয় কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়, মাননীয় কৃষ্ণদা, মাননীয় কৃষ্ণদা। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। এরপরে আমাদের এই মঙ্গলকোটের ভূমিপুত্র যিনি প্রত্যাশী প্রার্থী মাননীয় রানা প্রতাপ গোস্বামী গণেশের মূর্তি দিয়ে ওনাকে সংবর্ধনা জানাবেন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। দিনের সাতরা মাননীয় কনভেনার সাহেব উনি আমাদের জেপি নাড্ডাজি মহাশয়কে যোগাদ্দমা দিয়ে ওনাকে সর্দার গ্রহণ করছেন। আমরা যারা বাম দিকে আছি জেপি নাড্ডাজি জিন্দাবাদ। আমরা যারা বাম দিকে আছি অনুরোধ করব ডান দিকে চলে আসুন ছাওয়ার মধ্যে। আমাদের যারা বাম দিকে আছেন তাদের কাছে অনুরোধ করব আপনারা ডান দিকে এই ছাওয়ার মধ্যে চলে আসুন। ডান দিকে প্রচুর মানুষ হয়েছে, তা সত্ত্বেও বলবো ডান দিকে আপনারা চলে আসুন। এখন আপনাদের সামনে রানা প্রতাপ গোস্বামী মহাশয় ওনার সংক্ষিপ্ত মূল্যবান ভাষণ দেবেন। নমস্কার। মঞ্চে আসীন আমাদের সকলের অভিভাবক সম্মানীয় সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রসাদ নাড্ডাজি, ওনাকে আমার প্রণাম এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। উপস্থিত সম্মানীয় এমপি, লড়াকু নেতা, পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় যুব মোর্চার সভাপতি সম্মানীয় সৌমিত্র খাঁ মহাশয়, সম্মানীয় বর্ধমান পূর্ব জেলার সভাপতি লড়াকু নেতা আমাদের অভিভাবক কৃষ্ণ ঘোষ সহ ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তা, অভিভাবক তুল্য ভারতীয় জনতা পার্টির অনুরাগী কর্মীবৃন্দদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমি আপনাদের কাছে যে বক্তব্যগুলো কিছুক্ষণ আগে আপনাদের কাছে রাখলাম, এর সঙ্গে এই মঙ্গলকোট মানুষের যে দৈনন্দিন শিকার হতে হচ্ছে সেই শিকারের একটা বড় জায়গা আমাদের যে বালি খাদান এখানে রয়েছে, সেই বালি খাদানের যে মোটা টাকার কালো কারবারি, সেই কালো কারবারির টাকায় এলাকার সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ, তার ফল সুদূর প্রসারী করতে যে সহায়ক ভূমিকা নিচ্ছে সেই সহায়ককারী ভূমিকা আমরা অচিরেই শেষ করে দেব। শুধুমাত্র আপনাদের একটু আশীর্বাদ দরকার। আমাদের মায়েরা চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন না। সিংহদ গ্রামীণ হসপিটাল আমাদের যে হসপিটালে অ্যাম্বুলেন্স একবারে দোতলায় তোলা যেত চিকিৎসার সুবিধার্থে,
আজকে সেই হসপিটাল দীর্ঘদিন যাবৎ কোনো ডাক্তার নেই, কুকুর গরু ছাগল তার ভগ্ন দশায় পরিণত হয়েছে। আমরা কথা দিচ্ছি এখানকার রুগীদের আগামী দিনে যাতে আর কাটোয়া বর্ধমান যাওয়া মাত্রই চিকিৎসার জন্য যেতে না হয়, সেই সিংহত হসপিটালের সার্বিক উন্নয়নের চিকিৎসা ব্যবস্থার হাল ফেরানোর দায় এবং দায়িত্ব আমাদের। শুধু কাজ করার সুযোগটুকু দেবেন। লাখুরিয়া হসপিটাল আমি নিজে গেছি, আমি জানি লাখুরিয়া হসপিটাল ঠিক অনুরূপভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত রোগীদের পশ্চিম মঙ্গলকোটের যেতে হয় ঘুষকরা যাওয়ার পরই গতকালকেও একজন ভুলবশত বিষ খেয়ে ফেলেছেন, তাকে ঘুষকরা হসপিটাল পাঠানো হয়েছে। ঘুষকরা হসপিটাল থেকে তৎক্ষণাৎ অ্যাম্বুলেন্স করে তাকে কোথায় পাঠানো হয়েছে না, তাকে পাঠানো হয়েছে বর্ধমান হসপিটাল। গরিব মানুষ রোজ আনে রোজ খায়। হসপিটালের ভাড়া, অ্যাম্বুলেন্সের নিয়ে যাওয়ার ভাড়া 5,000 টাকা কোথায় পাবে? দিদিমণি 700 সাথীর গল্প শোনায়। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দিলে অ্যাম্বুলেন্সেও ভাড়া পাওয়া যাবে। চিকিৎসা হয় কি হয় না আমাদের পশ্চিম মঙ্গলকোটের মানুষ প্রতিনিয়ত মঙ্গলকোটের মানুষ তা উপলব্ধি করছে। এই ধোঁকাবাজি স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড আমরা চাই না। আমরা চাই আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড, আমরা চাই কিষাণ সম্মান নিধির কার্ড, আমরা চাই এখানকার মানুষের সার্বিক উন্নয়নের কার্ড। আর মঙ্গলকোটের পূর্ব মঙ্গলকোটে সমস্ত রায়দের সম্পত্তির বেআইনি কারবারি সেগুলো বিচে দেওয়া হচ্ছে। সরকারি 1 নম্বর খতিয়ানভুক্ত সমস্ত সম্পত্তি এখানকার বিএলআরও স্টাফেদের সহায়তায় তাদেরকে টাকা দিয়ে ভুয়ো কাগজ করিয়ে সেই জমি জায়গায় বিচে দিয়ে কালো কারবারি করা হচ্ছে এখানকার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের কাজ। যে নেতা আজকে এখানে প্রত্যাশী তিনি দীর্ঘ 10 বছর যাবৎ এই মঙ্গলকোট ব্লক চালিয়ে আসছেন। তাই এলাকার মানুষ জানেন তাকে যদি আপনারা ক্ষমতায় নিয়ে আসেন কি পেতে পারেন আর কি পাবেন না। তার কাছে পাবেন কি 10,000 টাকা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার 10 থেকে 20,000 টাকা কার্ড বানিয়ে দিয়ে এসছেন। তাকে যদি ক্ষমতায় নিয়ে আসেন 20,000 টাকাটা 40,000 হবে। পায়খানার টাকা 7,000 8,000 টাকা কমিশন আপনার 10,000 টাকায় গায়েব হয়ে যাবে। আমাদের কাছে তথ্য আছে ভাল্লগ্রাম পঞ্চায়েতে বিস্তীর্ণ টাকা কম করে 800টি পায়খানা ঘরের টাকা, একটা পায়খানা ঘর তৈরি হয়নি। পুরো টাকাটা এখানকার বিডিওর সহায়তায় পুরো টাকাটা আপনারা আত্মসাৎ করে দিয়েছেন। আমরা পুনরায় কমিশন বসিয়ে সেই টাকা আদায় করিয়ে সেই মানুষের ঘরে ঘরে স্বচ্ছ ভারত মিশনের পায়খানা করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আমি দিয়ে রাখছি। শুধুমাত্র আপনাদের একটু সহযোগিতা চাই। আপনাদের মূল্যবান একটি ভোট। আপনি 8ই বৈশাখ সকাল সকাল মঙ্গলকোটে জানি আপনাদের ভয়ের পরিবেশের মধ্য দিয়ে ভোটদান দিতে হয়। এনারা ভয় দেখাচ্ছেন মঙ্গলকোট পঞ্চায়েতে, ঝিলু 2 পঞ্চায়েতে, লাখুরিয়া পঞ্চায়েতে ভয় দেখাচ্ছেন এখানকার নেতারা যে ভোট হতে দেব না। আমি বিজেপির প্রার্থী হিসাবে বলছি এলাকার সমস্ত মানুষ নিজে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পাবেন। তাদেরকে ভোট দান করানোর পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্য আমি আপনাদের পাশে আছি। ভারতীয় জনতা পার্টি আপনাদের পাশে আছে। আপনারা নির্ভয়ে ভোট দেবেন এবং ভোট দিয়ে দেখিয়ে দেবেন যে মঙ্গলকোটের মানুষ পরিবর্তন চায়। কাটমানির সরকার চায় না, তোলাবাজি সরকার চায় না, সন্ত্রাসবাদী সরকার চায় না। মঙ্গলকোটের মানুষ চায় মঙ্গলকোট তৈরি করতে যেখানে মানুষের মঙ্গল হবে। এইটুকু আশা রেখে আগামী দিনে আপনাদের আশীর্বাদ কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারত মাতার জয় হোক। মাননীয় রানা প্রতাপ গোস্বামী মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন আপনাদের সামনে কাটোয়া জেলার যে তরুণ তুর্কি আমাদের জেলা সভাপতি মাননীয় কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন। মঙ্গলকোট যে বিধানসভার যে নির্বাচনী সভা, এই সভা মঞ্চে উপস্থিত
আমাদের কেন্দ্রীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজি উপস্থিত আছেন। এই মঙ্গলকোট বিধানসভার সবারই প্রিয় সম্মানীয় প্রার্থী রানা প্রতাপ গোস্বামী মহাশয় উপস্থিত, এই জেলার ভাইস প্রেসিডেন্ট অনিল দত্ত তথা এই যে 4 মণ্ডলের সভাপতি, পার্শ্ববর্তী কাটোয়া বিধানসভার 4 সভাপতি তথা আমাদের সবারই প্রিয় সংসদ সৌমিত্র দা, কনভেনার দীনেশ দা, দীর্ঘদিনের প্রাক্তন জেলা সাধারণ সম্পাদক তথা আমাদের সবার প্রিয় মঙ্গলকোটের নেতা অলোক দা, আর আগত এই বিধানসভার সমস্ত কার্যকর্তাকে গৌরী গণন্দ শুভেচ্ছা। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের মঙ্গলকোট বিধানসভার যে 22 এপ্রিল সকাল সকাল আমাদের সকলকেই ভোট দিয়ে রানা প্রতাপ গোস্বামী মহাশয়কে বিজয়ী করে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতকে শক্ত করতে হবে। কেন এই মঙ্গলকোট বিধানসভার আপনারা প্রত্যেকজন জানেন যে খুন সন্ত্রাস, যে ধর্ষণ, তোলাবাজি সরকারকে যদি উচ্ছেদ না করতে পারেন আগামী দিন কিন্তু আমাদের এই মঙ্গলকোট বিধানসভা আরও ভয়াবহ পরিস্থিতি হবে। তাই সমস্ত মঙ্গলকোটবাসীর কাছে আমার আহ্বান যে আপনারা 8ই বৈশাখ 22 এপ্রিল সকাল সকাল আমাদের প্রার্থী রানা প্রতাপ গোস্বামীকে ব্যাপক ভোটে ভোট দিয়ে জয়ী করে কলকাতায় পাঠাবেন আমাদের বিজেপি সরকার গঠন করার লক্ষ্যে। সকলের কাছে আমি এইটুকুই আহ্বান করব, কিন্তু আমাদের কেন্দ্রীয় সভাপতি আছে, তিনি বলবেন, সৌমিত্রতা আছে। আমি শুধু আপনাদের একটাই কথা বলতে চাই, আর ভয় পাওয়ার কারণ নেই, ভয়ের দিন শেষ হয়ে গেছে। এই 2রা মের পর বাংলা থেকে তৃণমূল সরকার উচ্ছেদ হচ্ছে, এই নিশ্চিত ভেবে যান এখান থেকে, আর ভয়কে বাইরে ফেলে দিন। আর আগামী 2রা মের পর থেকে মঙ্গলকোটে শান্তি ফিরবে, এ নিশ্চিত থাকুন। তাই আর একবার আহ্বান করব আমাদের বিজেপির প্রার্থী মঙ্গলকোট বিধানসভার সবারই প্রিয় রানা প্রতাপ গোস্বামীকে 22 তারিখ 8ই বৈশাখ সকাল সকাল ভোট দিয়ে জয়লাভ করুন। সকলকে ধন্যবাদ। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। মাননীয় সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের মধ্যেই আমাদের যুব নেতা, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব মোর্চার সভাপতি, যিনি আপনাদের মাঝখানেই এখন ঘুরছেন, তো ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এইরকম মাটির মধ্যে থাকার জন্য, মানুষের পাশে থাকার জন্য। এখন আপনাদের সামনে যে মূল্যবান বক্তব্য শোনার জন্য আপনারা অপেক্ষারত, সেই মাননীয় জেপি নাড্ডাজি মহাশয়কে আজকের এই মহতী সভায় আহ্বান করছি, আজকের এই নির্বাচনী সভার বক্তব্য রাখার জন্য। माननीय नाड्डा जी सर, आप ये वक्तव्य देने के लिए हम आपके इनवाइट कर रहे हैं। आप आपके बहुत कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ पे आ रहे हैं, हम आपके बहुत बहुत नमन करते हैं ये मंगलकोट विधानसभा सबको लोग के लिए। आज के इस मंगलकोट के विधानसभा के चुनावी सभा में उपस्थित मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद और संसद में मेरे सहयोगी युवा नेता श्री सौमित्र खान जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री कृष्ण घोष जी, हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी श्री राणा प्रताप गोस्वामी जी, समीर दास जी जो मंडल के अध्यक्ष हैं, सम्मानित मंच, और यहाँ इतनी गर्मी में, इतने धूप में, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हमारे इस विधानसभा मंगलकोट के माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे प्यारे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आप सब लोग इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं, ये बताता है कि आपने इस चुनाव में अपना आशीर्वाद
राणा प्रताप गोस्वामी जी को देना तय कर लिया है, यह इस बात को इंगित करता है। मित्रों, आपकी ये तालियों की गड़गड़ाहट मेरी बात की पुष्टि करती है कि आपने यहां से राणा प्रताप जी को विधायक बना करके इलाके का विकास करना तय कर लिया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं मंगलकोट में, तो मुझे जागेश्वरी मंदिर को याद करना और नमन करना, हमारे 108 शिव मंदिर को नमन करना, यह मेरा परम कर्तव्य बनता है। यह धार्मिक भूमि जो शिव का आशीर्वाद प्राप्त है, और पास में ही हम बर्दवान में सर्वमंगल देवी का भी हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं यहां आया हूं तो मैं देवी को भी नमस्कार करके नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। मित्रों, आज चुनाव की सभा में मैं आया हूं, लेकिन आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। 130वां जन्मदिन मना रहे हैं। जब हम उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं 130वीं, तो हम भारत के संविधान निर्माता को याद भी करते हैं। उन्होंने हमेशा जिंदगी भर छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सभी समाज को एक साथ लेकर के चलने की तमन्ना रखी, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत रहे, जिंदगी भर बहुत तकलीफें सही, लेकिन भारत के लिए अक्षुण्ण रहने के लिए भारत के संविधान निर्माता के रूप में उन्होंने भारत को संविधान जो दिया वो हम सब के लिए प्रेरणादायी है और सदा हमको प्रेरणा देता रहेगा। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम नमन करते हैं। लेकिन जहां हम उनको नमन करते हैं, वहीं मुझे ममता दीदी के दलित विरोधी होने का भी आभास जो होता है, आजादी के इतने साल बाद, वह भी दुखदाई होता है। अभी अभी टीएमसी की एक नेत्री ने दलित भाइयों को बहुत ही हल्का शब्द का इस्तेमाल किया। मैं इस मंच से वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि दलित भाई हमेशा मांगते ही रहते हैं और कितना भी दो कोई उन कभी शांत नहीं होते। और उसके साथ साथ उन्होंने एक शब्द का भी उपयोग किया जो मैं नहीं कर सकता। लेकिन मुझे दुख है कि 10 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाली बंगाल की ममता दी, उन्होंने आज दिन तक एक भी शब्द उसकी भर्त्सना नहीं की है। यह टीएमसी का दलित विरोधी चेहरा है, जिसको हमको समझना चाहिए। और अंबेडकर जी के इस 130वीं जन्म तिथि पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोग, ऐसा नेतृत्व जो दलित विरोधी हो, उसके साथ हमको किस तरीके से आने वाले चुनाव में अपना मतों का प्रयोग करके ऐसे लोगों को घर बैठाने की आवश्यकता होती है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, कल पहला बैसाख है, शुभ दिन है। मैं अपनी ओर से आप सबको पहला बैसाख की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और साथ ही साथ यह उम्मीद करता हूं कि अंधकार से हम उजाले की ओर आएंगे। ममता दीदी के तानाशाही, टोलाबाजी, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार से उबर करके राणा प्रताप गोस्वामी नई रेखा लिखेगा और नई दिशा लेकर के चलेगा, उसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, बंगाल के लिए एक नई उमंग का अवसर है। ये राणा प्रताप का अकेला चुनाव नहीं है। ये राणा प्रताप जी का सिर्फ विधानसभा में जाना ये लक्ष्य नहीं है। इनके माध्यम से जो 10 साल तक ममता जी का कुशासन चल रहा है, उसको सबक सिखाते हुए प्रजातंत्र तरीके से
बैलेट के माध्यम से उनको विदाई का नमस्कार कहना है और राणा प्रताप और भारतीय जनता पार्टी और कमल का सत्कार करना है, स्वागत करना है। इसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए बंगाल जिसने बहुत कुछ पिछले 10 सालों में देखा है, बुरा देखा है, अनाचार देखा है, अत्याचार देखा है, लेकिन बंगाल की जनता घबराई नहीं है। बंगाल की जनता थकी नहीं है। बंगाल की जनता ने कमल के निशान पर बटन दबा करके नया बंगाल, सोनार बंगाल, ओसोल परिवर्तन की तरफ बढ़ना तय किया है। और इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि आप लोगों की हिम्मत की मैं दाद देता हूं। आपने जिस उमंग के साथ आगे बढ़ना तय किया है, मुझे पूरा विश्वास है और मुझे वो उम्मीद दिख रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो बंगाल अभी सिंगल इंजन पर चल रहा है मोदी जी के, वो आप 2 तारीख को डबल इंजन कर देंगे और फिर नीचे भी धरती पर काम ठीक ढंग से चलेगा और मोदी जी के काम को हम आगे बढ़ाएंगे। ये हमको ध्यान में आता है। मित्रों, ये जो आतंक का वातावरण है, मैं दिसंबर में आया था, मैं नवंबर में आया था, मुझे याद है दिसंबर में मेरे ऊपर आक्रमण हुआ था, डराने की कोशिश हुई थी। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये बंगाल की जनता है, ये बहुत ही हिम्मती जनता है और मैं जमीन से आया हुआ आदमी हूं। आपकी भभकियों से और अत्याचार और आक्रमण से हम हटने वाले नहीं हैं। हम प्रजातांत्रिक तरीके से मुंह तोड़ जवाब देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और आज हम ये कह सकते हैं कि अत्याचार और आतंक से निकलकर बंगाल की जनता आज खुलेआम पूरी ताकत के साथ सड़कों पर उमंग और उत्सव के साथ भारतीय जनता पार्टी को उसको आशीर्वाद देने के लिए आतुर हो रही है। वह हम सबको समझ में आ रहा है, वो हम सब देख पा रहे हैं। मित्रों, दीदी बौखलाए गए, बौखला गई हैं, गुस्सा, हमेशा गुस्सा। ये बताता है कि दीदी के हाथ से चुनाव निकल गया, टीएमसी साफ और भारतीय जनता पार्टी का आना तय हुआ। अभी अभी उन पर 24 घंटे का बैन लगा था, बैन इलेक्शन कमीशन ने लगाया था। लेकिन दीदी ने क्या बोला था? दीदी ने एक मजहब के लोगों से निवेदन किया था, इकट्ठा हो जाओ। देखो कैसा बंगाल का नेतृत्व रहा होगा 10 साल, जो समाज को बांटने का काम करती है। एक तरफ मोदी जी हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 130 करोड़ की जनता की दिन रात चिंता करने वाले नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। और दूसरी ओर इकट्ठा हो जाओ, किसके खिलाफ, क्यों? और सीआरपीएफ के जवानों और सीएपीएफ के जवानों को कहो इनको घेर लो। ये मुख्यमंत्री बोल रहा है। देखो ये बौखलाहट कहां पहुंच गई है। बोलो, ऐसे मुख्यमंत्री को रखोगे क्या? ऐसे मुख्यमंत्री को रहने दोगे क्या? इस पर सदा बैन लगेगा ना? आप राजनीतिक तरीके से बैलेट पेपर के माध्यम से, ईवीएम मशीन के माध्यम से कमल पर बटन दबा करके सदा के लिए बैन कर दो और कमल खिला दो। इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। बोलो, करोगे ना? करेंगे ना? पीछे से आवाज आएगी ना? मित्रों, क्या बना दिया बंगाल को एक देश। हम शपथ लेते हैं बिना राग द्वेष के, बिना अनुराग के, मैं देश की सेवा करूंगा, संविधान की रक्षा करूंगा। आज डॉक्टर अंबेडकर जी का 130वां जन्म जयंती है। संविधान की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। और वहां की मुख्यमंत्री बोलती है फलाने को घेर लो, उनको रोक लो और फलाने समुदाय इकट्ठे हो जाओ। बोलो, ये ऐसे लोग नेतृत्व के लिए चाहिए क्या बंगाल को?
ये शांति लाएंगे क्या? ये समाज की चिंता करेंगे क्या? ये समाज को एकजुट रख पाएंगे क्या? इनको घर बैठाना चाहिए कि नहीं बैठाना चाहिए? और इनके साथ साथ भाइपों को घर बैठाना चाहिए कि नहीं? बैठाना चाहिए कि नहीं? मित्रों, ये समय है, 2 तारीख को मैं इंतजार करूंगा। जब नतीजे आएंगे तो ये घर की ओर जाएंगे और आप बंगाल को नई दिशा, नई उमंग के साथ डबल इंजन की सरकार पर बढ़ेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है, मैं बताना चाहता हूं। मित्रों, मैं यहां आया हूं मंगलकोट में, आलू की उपज और धान की खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन मुझे दुख हुआ, यहां वेयर हाउस नहीं है, यहां स्टोरेज नहीं है, यहां कोल्ड स्टोरेज नहीं है, यहां उनके बेचने की कोई व्यवस्था नहीं है, और बिचौलिए बीच में किसानों का शोषण करते हैं कि नहीं करते हैं? किसानों को जो उचित दाम मिलना चाहिए उसको रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं? और उसी तरीके से सरकार की तरफ से भी कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती रही है। मिडिलमैन, बिचौलियों के माध्यम से यहां किसानों के बारे में उनका शोषण होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, यहां विकास की नई गाथा रची जाएगी और किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए रखे हैं सिर्फ इसी बात के लिए कि किसान अपना विकास कैसे तय करेगा, उसको पूरा करना है। बोलो, वो पैसा यहां लगना चाहिए मंगलकोट में कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं? और ममता जी नहीं देने दे रही हैं, नहीं देने दे रही हैं। मित्रों, 2 तारीख का इंतजार करो, 18,000 बकाया भी मिलेगा और साथ में 4,000 साल का भी और मिलेगा, पूरे 10,000 मिलेंगे। इस बात को ध्यान में रखो। और किसानों को पेंशन भी लगाई जाएगी, कोल्ड स्टोरेज भी बनेगा, वेयर हाउस भी बनेगा, सड़कें भी बनेंगी, मंडी तक आपका अनाज सीधे पहुंचेगा, इसकी व्यवस्था होगी। बोलो, ऐसा करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? और करने के लिए राणा प्रताप को भेजना है कि नहीं भेजना है? आशीर्वाद देना है कि नहीं देना है? ये मित्रों हमको करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ध्यान में रखना चाहिए। वैसे ही मैंने देखा सड़कें नहीं, पुअर कनेक्टिविटी है, इलीगल माइनिंग हो रही है और मंगलकोट सारे सुविधाओं से वंचित है। ऐसी जगह को फिर से नए दृष्टि से खड़ा करना हमारी जिम्मेवारी है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फार्म गेट के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज भी बनेगा, वेयर हाउस भी बनेगा, सड़कें भी ठीक होंगी, बिचौलियों से निजात भी मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बकाया समेत आपको मिलेगा, किसानों को मिलेगा, 76 लाख किसानों को मिलेगा। यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, ममता जी बोलती थी मां, माटी, मानुष। मां का तो वो हाल किया, वो शोभा मजुमदार से पूछे, बेचारी रही नहीं। टीएम बीजेपी के कार्यकर्ता को बचाते हुए अपनी मां 80 वर्ष की, उन्होंने जीवन, उनका बलिदान हो गया, एक शब्द नहीं निकला ममता जी से। यह है मां की चिंता। मानुष बचाई नहीं, अत्याचार पे अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, अनाचार, हर एक तरीके का अत्याचार चलता रहा है और इसलिए मां, माटी की चिंता नहीं हुई, मानुष की चिंता नहीं हुई। चिंता किसकी हुई? टोलाबाजी, कटमनी, तुष्टीकरण, तानाशाही। बोलो, इन सब का जवाब देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? अगर देना है तो कमल खिलाना होगा, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। यह हम आपसे कहना चाहते हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, सबसे ज्यादा एसिड अटैक, तेजाब के साथ अटैक महिलाओं पर हुआ है तो बंगाल में हुआ है। सबसे ज्यादा रेप केस हुए तो बंगाल में हुए।
सबसे ज्यादा अपहरण हुआ तो बंगाल में हुआ। यह बंगाल की बेटी और बंगाल की दीदी के हाल है। मित्रों, इसका जवाब देना है कि नहीं देना है? महिलाओं को सुरक्षित रखना है कि नहीं रखना है? अगर रखना है तो कमल खिलाना है, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने यहां विकास के बहुत से काम किए। सड़कें, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किया। कांग्रेस के जमाने में और यूपीए के जमाने में भारत सरकार ने सिर्फ 96,000 करोड़ रुपए दिया था। प्रधानमंत्री जी ने 4 लाख करोड़ रुपए देकर के विकास का काम शुरू किया। अभी पीछे आए थे, उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए का काम शुरू कराया। दूसरी बार आए, 12,000 करोड़ रुपए का काम शुरू कराया। मित्रों, यह काम जमीन पर करने के लिए यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मित्रों, ये जो बहुत मेहनत से मोदी जी पैसा बंगाल को भेज रहे हैं, वो ठीक से लगे, इसलिए बंगाल में भी राणा प्रताप से लेकर के सारे बीजेपी के लोगों को विधानसभा में पहुंचाने की हमारी जिम्मेवारी बनेगी। मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे सिर्फ मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में एक परिवर्तन के साथ आगे बढ़ रही है। इच्छा है हमारी कि खोया हुआ गौरव बंगाल का वापस आए, बंगाल सोनार बंगाल बने, असोल परिवर्तन आए। और वह परिवर्तन करने के लिए आप सब लोगों को लगना पड़ेगा। राणा प्रताप जी को आशीर्वाद देना पड़ेगा। ये राणा प्रताप जी सामाजिक प्राणी हैं, राजनीतिक प्राणी हैं। आई कैंप लगाते हैं, लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों को हमको आगे बढ़ाना होगा। यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। नड्डा जी जिंदाबाद, 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 नड्डा जी जिंदाबाद, 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 नड्डा जी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, केंद्रीय सभापति सम्माननीय नड्डा जी जिंदाबाद, 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 केंद्रीय सभापति सम्माननीय नड्डा जी जिंदाबाद, 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 केंद्रीय सभापति सम्माननीय नड्डा जी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।